हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से जोर से जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आज कितने जन आनंदित हैं परमेश्वर की हजूरी में। जोर से तालियों के साथ आज की परमेश्वर की बड़ी सामर्थ के लिए, बड़ी ग्रेस के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और फॉरेन ब्रांचेस जितने भी जन ऑनलाइन आज परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं, आप सब जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं। आप जानते कि जब भी हम इंस्टेंट टेस्टिमनीज को सुनते हैं तो हम जल्द जल्द उन टेस्टिमनीज को सुन लेते हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी बहुत बड़ी स्टोरीज होती हैं। जब हम सुनते हैं तो हमें असल में गवाही का पता चलता है। तो आज कुछ टेस्टिमनीज हमारे पास आई हैं, तो हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। जैसे कि परमेश्वर के वचन लूका 1 अध्याय उसकी 37 आयत में लिखा है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। यानी कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। तो आइए इस भाई की इस मार्वलस टेस्टिमनी को हम देखते हैं। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम नीलम आ, ये मेरा बेटा लवप्रीत आ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਝੇੜੂ ਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਰਨੈਲ ਪੀ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਅਟੈਕ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। LCD ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਆਉਣਾ, ਦੌੜਨਾ। ਅਸੀਂ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਛੋਟ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਗੇਟ ਦੇ ਬੂਹੇ ਭੰਨੇ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਟੀ। ਜਿੰਦੇ ਕੋ ਤੋੜਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲੇ ਰੋਣਾ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁੰਡੇ ਬੂਹੇ ਲਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਲਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਗੱਭੇ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਭੇ ਪੈਣਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਬਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 3-4 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, 16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ
ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਚੁੱਕ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਟੈਕ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਸੁੱਚਾਂ 'ਚ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨੇ, ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ LCDਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਬਾਲਟੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਤੋੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਗਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੱਜਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਕੋੜੀ ਸੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਦ ਇਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਪਾਗਲਪਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ 2021 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। यीशु मसीह के नाम में रोगी जितने इस आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, वो गुरदासपुर में बैठे हो, वो ऑनलाइन हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। उस प्रेयर नूं रिसीव करने तो बाद ये बड़ा आनंद ना रहा, खुशी रहा, गल्लां कीतियां, हੱਸਿਆ। हुण मेरे बेटे नूं कोई पागलपन का अटैक नहीं हुंदा, ना ये डरदा आ, ना कोई भन्न तोड़ करदा आ ते बड़े आनंद नाल रहिंदा, बड़ा खुश रहिंदा, साडे नाल गल्लां बातां करदा आ, बड़े प्यार नाल परिवार दे विच रहिंदा आ ते रोटी भी बड़े आनंद प्यार नाल खांदा, रोटी भी खांदा, रज के रोटी खांदा आ ते मतलब हुण बहुत खुश वा साडे परिवार दे विच। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢੀ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਪਾਗਲਪਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਗਲਪਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। मैं अपने बेटे दे बड़े छुटकारे लई परमेश्वर दा धन्नवाद करदी हां, परमेश्वर दे दास दासी दा धन्नवाद करदी हां। सारिआं नूं जय मसीह दी। हालेलुया। परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में बहुत ही बड़ा और अद्भुत काम किया और हमारा विश्वास है जब आप इस बहन की इस गवाही को सुनेंगे तो आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित परमेश्वर है और बड़े वो अद्भुत काम करते हैं। तो आइए इस बहन की इस मार्वलस टेस्टिमनी को हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं आज अपने जीवन की सबसे अद्भुत गवाही दे रही हूँ और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने जैसे मेरे जीवन में काम किया, मेरे जीवन में
ब्लेसिंग दी, वैसे परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा और आपके जीवन को भी ब्लेस करेगा। नवंबर 2019 में मेरी शादी हुई और शादी के बाद मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली सब लोग बहुत खुश थे। शादी के कुछ समय बाद मैं और मेरे हस्बैंड ने बेबी प्लान किया तो मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। जब मैं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही थी तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड ने डिस्कस किया कि अब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो जब मैं अपने शहर के गायने डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरे और मेरे हस्बैंड के टेस्ट किए। तो उन्होंने जब टेस्ट के बाद मेरे हस्बैंड को बताया कि उनके स्पर्म में इन्फेक्शन है, तो उसके बाद उन्होंने हम दोनों को मेडिकेशंस प्रोवाइड की। तो हमने लगातार मेडिसिन्स खाई, तब भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मैं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाई। जब हमें फर्स्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने के बाद कोई रिजल्ट नहीं मिला तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि अब हमें दूसरे डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो जब हम अपने शहर के दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने हमारे कुछ टेस्ट किए तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस है। फिर उस डॉक्टर ने भी मुझे लगातार मेडिसिन खाने को बोली और फिर उसके लगातार मेडिसिन खाने के बाद भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, मैं तब भी प्रेगनेंसी रिसीव नहीं कर पाई। जब मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी तो फिर मैं अकेले जब भी अपने हस्बैंड के साथ बैठती थी रूम में, तो हम लोग जब भी बेबी के बारे में डिस्कस करते थे तो मैं बहुत रोती थी उस टाइम पे कि लोगों के बच्चे देखकर जब मैं बाहर जाती थी तो मुझे लगता था कि मेरा भी ऐसा बेबी हो। तो मुझे जब बेबी लगता था शर्मिंदगी महसूस होती थी और लोग भी ताने देते थे या पूछते थे कि आपका बेबी क्यों नहीं हो रहा, क्या रीज़न है, इतना टाइम शादी को हो गया कि आप बेबी प्लान कर नहीं रहे या फिर आपके क्या रीज़न है बेबी ना होने का। जब लोग मुझे पूछते थे कि बेबी क्यों नहीं हो रहा तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी और घर पे आके मैं रोती थी और मैं कोई जवाब नहीं दे पाती थी। डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के बाद जब मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला तो मैं और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया हमें IVF कराना चाहिए, क्योंकि हमने लोगों से सुना था कि IVF के बारे में कि प्रेगनेंसी आप कंसीव कर सकते हो IVF कराने के बाद, लेकिन डॉक्टर्स भी इसकी कोई गारंटी नहीं देते थे। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ, तो जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी तो मुझे भी लगता था कि मैं भी अपने बेबी को पढ़ाऊँ और मुझे बहुत शौक था एज अ टीचर कि मैं भी अपने जैसे और स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मैं भी अपने बेबी को भी पढ़ाऊँ। कई बार तो मुझे ऐसा होता था कि मैं अकेले बैठ के बहुत रोती रहती थी और कोई भी हस्बैंड से बेबी के बारे में जब भी बात होती थी तो मैं कभी कभी ऐसा होता था कि मैं रात रात को उठती थी, खाना खाने को भी मन नहीं करता था मेरा, रात रात को उठ के बैठती थी और सोचती रहती थी कि मेरा बेबी नहीं हो रहा, अब मुझे क्या करना चाहिए, कि होगा भी या नहीं। एक उम्मीद छोड़ दी थी मैंने। हमारा पूरा परिवार वेल सेटल्ड था, मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग सब वेल सेटल्ड थे, लेकिन हमारे घर में सिर्फ एक ही कमी थी कि हमारे घर में बेबी नहीं था। तो हमारा भी मन करता था लोगों के बच्चे को देखकर, हम जब बाहर निकलते थे बच्चों को देखती थी तो मेरा बहुत मन करता था कि मेरा भी ऐसा बेबी हो, हम उसको टॉयज़ लेकर दें, क्लोथ्स लेकर दें नए नए, तो और हम उसको पढ़ाएं लिखाएं बड़ा करें। तो मेरा बहुत मन करता था कि हमारे घर भी अपना बेबी हो। फिर मेरे एक भाई, विश्वासी भाई ने मुझे अंकुरला मिनिस्ट्री के बारे में बताया कि तुम वहाँ पर जाओ और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े परमेश्वर काम करता है, लोगों के जीवन में गवाहियाँ देता है, तो तुम भी जाकर देखो, तुम्हारे जीवन में भी बेबी ब्लेसिंग आएगी। जब मैंने उनके कहने पर ऑनलाइन मीटिंग्स को देखना शुरू किया तो मैंने ये देखा, मैंने सुना कि परमेश्वर जब 10-10, 20-20 साल के बाद भी लोगों को बेबी से ब्लेस कर रहा है, तो परमेश्वर जब इनको ब्लेस कर सकता है तो परमेश्वर मुझे भी बेबी के साथ ब्लेस कर सकता है। और उसके बाद मेरा परमेश्वर पर विश्वास मजबूत होता गया। जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थनाएं करते थे मैं उन प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करती थी। फिर 21 नवंबर 2021 को मैं खामरा चर्च की मीटिंग को अटेंड कर रही थी। फिर उसके अटेंड करने के दौरान परमेश्वर के दास ने बेबी ब्लेसिंग्स के लिए जब प्रेयर्स करी तो मैंने उन प्रेयर्स को अपने लिए रिसीव किया। मैं देख रहा हूँ आज जैसे इस ऑयल से आपकी प्रार्थना होगी, मैं देख रहा हूँ प्रेगनेंसी की टेस्टिमनी, गर्भ की टेस्टिमनी के साथ आपको आते हुए बहुत जल्द। उस प्रेयर को जब मैंने रिसीव किया मुझे अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हुआ कि अब मुझे मेरे साथ बहुत बड़ा काम होने वाला है, मुझे ऐसा खुद से फील हुआ। फिर नेक्स्ट मंथ जब मेरे पीरियड मिस हुए तो मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया तो मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। तो मैंने अपने हस्बैंड को जब बताया तो हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि इतने सालों बाद जब हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और मेरा पॉजिटिव आया तो मेरी खुशी का ठिकाना बिल्कुल नहीं था। और मैं इतना खुशी से, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे कि जब मैंने पॉजिटिव टेस्ट देखा अपना। फिर पूरे 9 मंथ्स परमेश्वर ने मुझे और मेरे बेबी को संभाल कर रखा और 12 जुलाई 2022 को परमेश्वर ने मुझे एक सुंदर बेटे के साथ आशीषित किया। जब मैंने अपने बेबी को गोद में लिया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और मेरे हस्बैंड ने जब बेबी को अपने गोद में लिया तो वो तो एकदम से
जैसे ही उनके हाथ में बेबी आया, उन्होंने सुना उसकी किलकारियों को, उसकी आवाज़ को सुना हॉस्पिटल में ही, तो वो एकदम से नीचे बैठे और परमेश्वर का हाथ उठाकर धन्यवाद किया। जो डॉक्टरों के लिए नामुमकिन था वो परमेश्वर ने हमारे जीवन में मुमकिन किया और हमारी निराशा भरी जिंदगी को खुशहाल जीवन दिया, खुशहाल जिंदगी दी और सबसे बड़ी कमी को हमारे जीवन से हटाया, शर्मिंदगी को हटाया और सबसे बड़ी गवाही हमारे जीवन में दी। और अब हम अपने बेबी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमारी सारी विशेष को परमेश्वर ने पूरा किया। अब हम उसको नए नए कपड़े बाहर घुमाने ले जाते हैं और मैं उसको एज अ टीचर पढ़ाती भी हूँ, मुझे बहुत शौक था। तो अब मेरी सारी विशेष को परमेश्वर ने पूरा किया और मेरी लाइफ को पूर्ण किया, संपूर्ण किया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बहनों के पास आज भी बेबी नहीं है तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि परमेश्वर ने जैसे मुझे बेबी के साथ ब्लेस किया है वैसे परमेश्वर उनको भी बेबी के साथ ब्लेस करेगा। बस ये एक है कि परमेश्वर पर विश्वास करो और परमेश्वर के जीवित कामों पर विश्वास करो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर उनके जीवन में भी बड़ी गवाहियों को देगा और निराशा को आशा में बदलेगा। मैं इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। तारीफ करिए सबसे जोर से तालियों के साथ। ऑनलाइन ब्रांचेस सबसे जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और जितने भी जन आज फॉरेन ब्रांचेस हमारे साथ परमेश्वर की हजूरी में जुड़े हुए, अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर उठाएं और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया।